All right, Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going through a very important recent paper, which is May June 24, paper 1, variant 2, right? So let's get started. Let me join from the other device. And if you have any specific questions from the previous paper or any, कल जो हमारा क्वेश्चन नहीं हो रहा था वो शायद हसान ने पॉसिबिलिटी थर्ड क्रिएट करके भेज दिया था, मैंने चेक नहीं किया, बट वो उसी में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। हसान आपने भेजा था या किसने, शावेज ने भेजा था? जी सर, क्या चीज? वो there was a question in the last paper जिसपे थोड़ा Oh सा no, प्रॉब्लम हो रहा था। Meera sent it. ये yeah. Well done, Dr. Meerab, if you are with us. Where is Meerab? Meerab is here. इसको क्या हो गया भाई? Great. My other device is creating some problem. अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. So I feel my screen is visible. Yes. It's May June 1 to 24. Let's get started with the first question. You all must have this device. It's this device. आप सबने मेरे साथ इसको solve करना है. So which pair of formula is correct? Let's start with D. Zinc carbonate. We know zinc, the most common oxidation state of zinc is +2. Carbonate is -2. This formula is correct. So this is incorrect because phosphate is -3 and ammonium is +1. So ammonium is +1 and phosphate is -3. So the formula must be, when you cross the numbers, it should be 3 instead of 2. So this is incorrect, right? So potassium phosphate is correct because potassium is +1, just like ammonium, and phosphate is -1. What do you think about this thing? So the most common, oxidation number of silver is +1. How would you guess the charge of this whole thing? What could be the possible charge of this hydrogen carbonate thing? Is it Negative. -1, -2? How much negative? It's negative. -1. Excellent. How do I know? We know that normally जो कार्बोनेट होता है ये -2 होता है, लेकिन अगर इसके साथ हम H+ लगा दें तो कार्बोनेट इज -2, हाइड्रोजन इज +1, तो ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? इट्स -1. इफ दिस इज -1, सिल्वर इज +1. देखो +1 -1, दिस फॉर्मूला इज आल्सो करेक्ट. सी इज द करेक्ट आंसर. अगेन ये देखो, दिस होल थिंग इज -1. इफ दिस इज -1, पोटेशियम इज +1, तो ये 2 नहीं होना चाहिए था. दिस इज इनकरेक्ट, although this is correct. And here nitrate is -1, ammonium is +1, तो ये bracket 3 तो आना ही नहीं चाहिए था. It should be simple ammonium nitrate, right? So this is also incorrect. Number 2, how many molecules? So here we are going to get number of molecule. How to get the number of molecule? Whenever you need to get the number of atom, ions, or number of molecules, so we need to get the number of moles and we should times it with Avogadro's number, which is represented by capital L. How many molecules are there in 62 gram of phosphorus? Now let's first find the moles. We know phosphorus is 31, so 4 is 31 times 4. When you do the maths, it should be 124. So that is the AR. 62 over 124 is how much? It's exactly half. ऐसा ही है ना? आपने पहले इसके moles find कर लिए. N is M over MR. It's 0.5. So these are the moles. 0.5 multiplied by L, which is very much same as option number C. देखो, अगर आप किसी चीज को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है ना. बात समझ आई सबको? Yes. So make sense? ये समझ आई बात सबको? एटम्स का पूछता. हाँ, एटम्स का पूछता तो फिर क्या करते? फिर हम उसको मोल्स को, एक्सीलेंट क्वेश्चन, सबसे पहले हम उसके मोल्स फाइंड करते हैं. मोल्स कितने आए? 0.5. फिर उसके एक मोल में कितने एटम्स हैं? हाउ मेनी एटम्स इन 1 मोल? 4 एटम्स. तो फिर मोल्स को हम एटम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि यहाँ पे उसने मॉलिक्यूल का पूछा है, तो सिंपल हमने उसके मोल्स फाइंड किए और फिर उसको सिंपली एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया. मेक सेंस? यस. आओगी ना सबको यार? क्या लिखा हुआ मैसेज में?
Oh, okay, so I will. Okay, the number next. The first 8 successive ionization energies for 2 elements of period 3 are shown. First 8 है ये successive, ठीक है, ये कोई भी है. First 8 successive. So this beautiful thing is present in, there is a big jump between 7 and 8, which shows that the 8th electron is removed from the inner shell. It has total 7 electrons, so it is present in group 7. Group 7 है period 3 है, so what is that element group 7 and period 3? That is nothing but chlorine, right? Group 7 and period 3. Because whenever you get the number of anything, Maham, जब भी किसी चीज का number calculate करना है, तो you have to multiply it with Avogadro. That's the formula. Whenever you're going to get number of moles, I mean number of molecules, number of atoms or number of ions, so then you have to use this. So this beautiful thing is in group 7 because it has 7 electrons in the valence shell. और period number 3 है, तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्लोरीन है, तो फिर तो ऑप्शन यही होना चाहिए क्योंकि क्लोरीन तो इसी में. Which formula of ionic compounds? अच्छा डबल चेक कर लें कि पीरियड 3 में क्लोरीन ही होता है, सेकंड पीरियड में फ्लोरीन है और थर्ड पीरियड में क्लोरीन है. और the first 8 successive ionization energies of 2 elements of period 3. अच्छा 2 elements of period 3 are shown. And then इसमें बड़ा जंप कहाँ है, इसमें बड़ा जंप है between second and third. That means it is in group 2. तो ग्रुप 2 में कौन होता है, मैग्नीशियम. तो इट इज आई थिंक यही होना चाहिए. बच्चा अगर कोई साथ मार्किंग स्कीम खोल ले तो समझ आ रही है ना बात सबको? यस सर मार्किंग स्कीम भी यही है. हाँ, साथ साथ कहीं पे प्रॉब्लम किया तो बताना. अच्छा, इन विच पेयर ऑफ बोथ स्पीशीज आर फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल आर दो स्पीशीज व्हिच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. आई मीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. सो देखो ऑक्सीजन का टोटल नंबर 8 है और 2 प्लस का मतलब है कि इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s2, 2s2 और 2p2 कोई ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, 4 तो निकल गया. अच्छा, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब इट हैज 9 इलेक्ट्रॉन. एज मेरा ख्याल यही होगा क्योंकि 1s2, 2s2 और 2p5 देखो ऑड नंबर आ गया ना. और क्लोरीन एटम हमेशा ऑड नंबर होता है क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. सो वैलेंस शेल में 7 आएंगे ना, 7 इज ऑड नंबर. क्लोरीन 8 इज नॉट अ फ्री रेडिकल. ऑक्सीजन इज अ स्टेबल लाइन, नॉट अ फ्री रेडिकल. बोथ स्पीशीज आर फ्री रेडिकल. अच्छा, ऑक्सीजन का देख लेते हैं. ऑक्सीजन का नंबर 8 है. इसका मतलब आइदर इट कुड बी ऑप्शन नंबर 3 किस किस में आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है और 3 यहाँ पे आ रहा है. So 4 is incorrect. इसका मतलब 1 वाला ठीक होना चाहिए. देख लेते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 8 है. 1s2, 2s2, 2p, x, 2p, y and 2p, z. 1, 2, 3, 4. अच्छा 2 और पीछे बचे 6. 4 and 2, 6. It have unpaired electrons. Both species are free radicals. ये तो free radical है. Can you check if option B is correct? Me अपना Fakia. For question number 4. Yeah. Answer is A. जी सर. अच्छा दोबारा चेक कर सर लेते हैं. 4 वाला कैसे करेक्ट है? 4 को दोबारा करना. So chlorine is plus. That means it has lost 1 electron. In which pair both species are free radicals? So 1s2, it has 17 atomic number. That means it has 16 electrons. Okay. 2s2, 2px. अच्छा 2p6 यहाँ पे पूरा कर लेते हैं ना पहले. 2p6 10 यहाँ तक हो गए. Then 3s2 12 हो गए. फिर हमारे पास बचे 5. No 4 बचे ना क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर ऑफ प्लस चार्ज है तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ तक 12 हो गए. अब हमारे पास बचे 4. तो 3px, 3py and 3pz. It has the exact same configuration as this first one. 4 बचे ना. देखो अनपेड इसमें भी हो. They both have unpaid, right? और इन दोनों में ऑड नंबर है. इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन का बना के देखते हैं. 2 + 8 है. 1s2, 2s2 और टोटल कितने हैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन. अभी हमारे पास 2 बचे तो 2px में एक आएगा 2p
y में एक आएगा, बिल्कुल ठीक है। सो 2 अनपेड यहाँ, 2 अनपेड यहाँ, और इसके तो दोनों ही अनपेड है थर्ड वाले के, सो इट शुड बी ए। पहले क्यों नहीं चेक किया? Sir, can you explain यस, chlorine 1 again? so free radical is a particle that have odd number of unpaired electron in any one of the orbital in the valence orbital. That's correction, मतलब valence orbital का मतलब है कि देखो 2 के 4 valence orbital है, 2s का एक orbital, फिर 2y, 2px, 2py and then 2pz, तो 4 orbital है। इन 4 orbitals में किसी एक के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फ्री रेडिकल, ठीक है, और वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ये जो दोनों हैं ऑप्शन नंबर 2 के, इसमें पेड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, ऑक्साइड 2 नेगेटिव है, नंबर 8, तो इसका टोटल 10 हो जाएंगे। 10 की लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। तो नाउ वी हैव टोटल 6 इलेक्ट्रॉन टू फिल। 4 तो यहाँ तक हो गए और टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो हो गए ना, इसमें कोई भी अनपेड नहीं है। इसी तरह क्लोराइड -17, इट हैज अ कंप्लीट आउटर शेल, सो नो फ्री रेडिकल, बाकी सब में आपको नजर आएंगे। Which shape is correctly predicted by Vesper theory? Okay, so Vesper theory जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि you have to look into the central atom, the central atom के सराउंडिंग्स में कितने लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 है, नंबर ऑफ, देखो अगर बॉन्ड पेयर भी 2 हो और लोन पेयर भी 2 हो तो उसकी शेप क्या होगी? दैट इज ये परफेक्ट एग्जांपल है वाटर की। सेंट्रल एटम के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। डू यू थिंक वाटर इज लीनियर? वाटर लीनियर होता है? क्या शेप है वाटर की? वाटर तो बेंट होता है, नॉन लीनियर। ओके, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल तो नहीं होता, बेंट होता है, इनकरेक्ट। 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 lone pair pyramidal, this is correct because ये एग्जांपल है अमोनिया या एनी पार्टिकल जिसमें सेंट्रल एटम हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 107.5 and pyramidal, this is correct। 3-1 is not trigonal, trigonal planar होता है 3-0 when there are 3 bond pair like sulfur dioxide, like BF3, and there is no lone pair. So it should be option number C. In which species does the underlined atom have an incomplete outer shell? Incomplete outer shell. Okay. So यहाँ पे बेटा we have oxygen and it has gained 1 proton. तो ये जो चार्ज है ना, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, वो H पॉजिटिव का है। अगर H पॉजिटिव निकाल दो तो it is H2O. So H2O, अच्छा इसने ये हुआ कैसे, H3O बना कैसे? दैट इज इंपॉर्टेंट। वी नो दैट ऑक्सीजन हैव लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो एक लोन पेयर इसने इसके साथ शेयर किया, डोनेट नहीं किया। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड? ये कौन सा बॉन्ड बना है व्हेन द लोन पेयर इज शेयर्ड बाय द ऑक्सीजन एंड वाटर टू द प्रोटॉन? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? Dative. इस डेटिव बॉन्ड बनने से क्या ऑक्सीजन का आउटर शेल इनकम्प्लीट हुआ या ऑक्सीजन को कोई फर्क पड़ेगा? No. नो, ऑक्सीजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका आउटर शेल कंप्लीट है, वो हमसे कह रहा है इनकम्प्लीट आउटर शेल। ओके, सो देखो ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स पर एटम, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। और एक फ्लोरीन ग्रुप 7 में होता है, एक फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन इधर बना लेगा, एक फ्लोरीन इधर का, तो क्या ऑक्सीजन का आउटर शेल इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा विद F2O? इट इज कंप्लीट। आई मीन इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, जो बनाता है फ्लोरीन एक ही बनाता है। दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। ये बनेगा थोड़ा सा बेंट क्योंकि इट विल बी वेरी सिमिलर टू वाटर। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन 2 लोन पेयर इधर, तो इसमें भी कंप्लीट है। यहाँ पे आज अच्छा, इसकी तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, तो हमने एक्सेप्शन में किया हुआ, लेकिन देखते हैं बी क्यों नहीं। देखो कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर एक इधर, CH3 हुआ। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, राइट? सो एक यहाँ इन्वॉल्व हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। वो जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, इसका मतलब एक इसने गेन भी किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि इस फॉर्म में कार्बन के पास 8 पूरे हैं या नहीं है? 2, 4, 6 एंड 8, कार्बन के तो 8 पूरे, बिकॉज उसने एक गेन भी किया हुआ है, राइट?
सो इस यहाँ पे भी कार्बन के 8 पूरे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो फिर यही है, बोरोन इज इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। सो ऑल 3 आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इवन ऑल 3 आर इन्वॉल्व, still the boron has 6 electron in the valence shell, so it has an incomplete incomplete outer shell. Make sense everyone? It should be Na. मोल्स का आ गया सबका फेवरेट। सर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं ए एंड बी? देखो ए एंड बी, देखो बी में मैंने कहा कि कार्बन CH3 है ना, तो पहले मैं CH3 लिख लेता हूँ आराम से, CH3। So one bond is formed by the 2 electron, one from each atom. तो एक इसका इलेक्ट्रॉन था, ये एक इसका, और ये वाले एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन। अब कार्बन ने 3 शेयर कर लिए, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ, एक यहाँ। अब कार्बन के पास तो 4 है, तो 4th इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये है, लेकिन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब जरा कार्बन को गौर से देखो, कार्बन के 8 पूरे हैं या नहीं? यस, 2, 4, 6 and 8, कार्बन के 8 पूरे। Mom, I didn't get your question. Incomplete could be anything, but free radical has to be an odd number of electrons. Yes, most of the time free radical and incomplete are the same things, but यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो, दिस इज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट। अजान हो रही है, आप सब लोग इसको देखें जरा। देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, it has 3 electron in the valence shell, all 3 are involved in bonding। फ्लोरीन एक ही शेयर करेगा, क्योंकि उसको शेयर एक करता है, बाकी 6 उसके ऐसे रहेंगे। Even in the bonded form, boron have 6 electron in the valence shell, which is not a complete shell. Second में आते हैं कितने? Second में तो 8 आते हैं। सब लोग ये ट्राई करें, नंबर 7 and 8। शाबाश, अजान हो रही है मेरे पास। All right, so सब लोग कर रहे हैं इसको। 50 plus 273 is how much? 323। प्रेशर इज इन किलो पैस्कल, इसको पैस्कल में करना है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये किलो पैस्कल में, तो इसको पैस्कल में करना। डू द मैथ्स। शाबाश, आई थिंक वी रोट एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। व्हाट इज द आंसर? आ रहा है कितना आ रहा है? सर, आंसर बी आ रहा है। क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, और ऑप्शंस आपको डीएम क्यूब में दिए हुए। 0.078 आ रहा है। तो फिर आपने जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज इससे जो आंसर आएगा दैट शुड बी इन मीटर क्यूब। ओके, तो मीरब सेड इट इज बी, राइट? बी ही है, इसको चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन रिलेटेड है। बेटे टेम्परेचर वाज 50 डिग्रीज ना,
So you have to add 273 into temperature to make it Kelvin. Right? So make sure you use the standard units always. Okay. Consider the following 4 compounds. I'm sure आपने ये कर लिया या नहीं किया? We have this thing. है क्या ये? Which order increasing the boiling point of the compound first lowest? Okay. जो ब्रांच वाले होते हैं ना उनका लोएस्ट होता है, ये याद रखना है. इसकी तो सारी ब्रांचेस, ये पहले वाला बना रहा हूँ, इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच है और इसके टोटल कार्बन है 3 कार्बन. मिथाइल प्रोपेन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट. और सबसे हाई इसका होगा क्योंकि और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में भी नहीं है, ठीक है. सो सेकंड शुड बी हाईएस्ट. इसका मतलब ना सी हो सकता है ना ए हो सकता है क्योंकि सेकंड शुड बी हाईएस्ट. ओके. फिर वो कह रहा है अच्छा इन दोनों में 3 तो दोनों में सेम है. फिर हम 1 और 4 में देख लेते हैं. 1 और 4 में किसका ज्यादा होना चाहिए, 1 का या 4 का? तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन, वेरी इजी. देखो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बट this one is branch and this one is straight. So straight chain have Minimal contact high. points. Yes. So minimal contact point का मतलब है कि उसकी forces weak होंगी या strong होंगी? Weak. Branch have minimum contact points, right? So this has weak lowest, straight chain, and then third, and then second it should be B. Can you please confirm? Yes. Correct, sir. Yeah. So इसमें idea ये है कि when you have 2 different hydrocarbons with the same amount of, isomers, so the straight chain have maximum contact points, so they offer stronger forces of attraction than those who are branch, जिसमें इन्होंने कहा कि we have lesser contact points. Ethane can react with fluorine to produce 1,2-difluoroethane, right? And the enthalpy of the reaction is negative 960. Okay, so what is the bond energy of CF bond in 1,2-dichloro? Let's look at the question. हम इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि initially you have 2 carbon with 6 hydrogens. This is what I'm drawing. And you are treating it with 2 fluorines molecule. और आपने बनाया क्या? आपने you substituted any 2 hydrogens with fluorine. That's why 6 hydrogens are now 4 hydrogens and we have 2 fluorines, right? And 2 HF are also produced. So हुआ ये है कार्बन बाकी सब कुछ सेम रहा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं किया कार्बन कार्बन का या बाकी कार्बन हाइड्रोजन का. We just break, substituted 1 hydrogen of each carbon. That means हमने जो यहाँ पे एनर्जी और साथ में क्या बना है 2HF. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेल्टा एच इज enthalpy of the reactant minus enthalpy of the products. Overall enthalpy is already given, negative 960. Reactants में हम किसको ब्रेक करें? Reactants में हम इस CH को और इस CH को, और तो किसी को ब्रेक ही नहीं कर रहे, और इस 2F को. So CH की कितनी है? 410. So 410 times 2 plus FF की कितनी है? 158. 158 times 2. इसको सॉल्व करें. नेगेटिव प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट्स में ये CF बन रहा है और ये CF बन रहा है, और तो प्रोडक्ट में कुछ बन ही नहीं रहा. तो CF की हमने 2 CF बन रहे हैं तो मैं इसको 2x कर लेता हूँ, प्लस HF बन रहे, देयर आर 2 HF आर प्रोड्यूस. एक HF 562, तो 562 टाइम्स 2. डू द मैथ्स प्लीज. शाबाश. हाउ मच? 486 आ रहा है. C. 486. It should be this way. So आपने सिर्फ वो लोग देखने हैं जिनको आपने चेंज किया है. अगर आप सबको भी कर दोगे तो आंसर फिर भी ठीक आएगा, मतलब सारे रिएक्टेंट्स को तोड़ो फिर सारे प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट. बट हमने क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी है? जिसके साथ पंगा किया है सिर्फ उसी को आप चेक करो, उसकी एनर्जी. और जो नए बने हैं reactant minus product, overall energy is already given in the question. Okay. Which equation has an enthalpy change equal to the standard enthalpy change of formation of sodium oxide? So standard enthalpy change is when 1 mole of any compound is formed. तो यहाँ पे sodium oxide का from its elements in their standard states. So this is not even 1 mole. This is not even 1 mole. तो product का 1 mole बनना चाहिए.
from its elements in their standard states, right? So ये जो B है ये incorrect मुझे इस तरह लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. This is not even balanced, तो ये भी नहीं होगा. तो फिर this should be correct. How? 1 mole of product is formed from its elements in their standard states, right? Product को आपने change नहीं करना, there should be 1 mole of the product always, right? Nitrogen dioxide reacts with water to form nitrous oxide and nitric acid. Which statement about the reaction is correct? Water act as an oxidizing agent. ठीक है, देख लेते हैं. तो water का कुछ change हो रहा है. So water कैसे oxidizing agent? Oxidizing agent that reduces itself. तो water ने कहीं कोई reduction की है यहाँ पे? इसको अभी hold पर. Water की कोई reduction तो नहीं हुई है. I mean OH H crystal there is same charge. Oxygen -2 है हर जगह. Hydrogen +1 है. Yes, nitrogen का charge change हुआ है. I believe. देख लेते हैं. Oxidation number of hydrogen is increased. I don't think so. Nitrogen atom undergo disproportionation. ये check करना पड़ेगा. Disproportionation is when the same element is oxidized and reduced. So here oxygen is -2, 2 of them are -4. So nitrogen must be +4. ऐसा ही है. Yes. Oxygen is -2, 2 of them -4. Hydrogen is +1. Then this nitrogen should be +3 to make it 0. So nitrogen +4 से +3 reduction. यहाँ reduction हुई है. And यहाँ पे of course oxidation हुई होगी. Oxygen is -2, 3 of them -6. Hydrogen is +1 and should be +5. तो यहाँ पे oxidation हुई है. तो nitrogen undergoes oxidation and reduction disproportionation. Both products formed because oxygen atoms gain oxygen, neither it loses nor gain, oxygen remains the same, right? So it is the disproportionation reaction happens with nitrogen as it undergoes both oxidation and reduction reactions. Okay. Phosphorus reacts with concentrated sulfuric acid to produce phosphorus acid, sulfur dioxide, and water. Phosphorus reacts with, sulfuric acid, phosphoric oxide, sulfur, and water. They are the whole numbers. The equation can be balanced by oxidation numbers. Let's balance the equation. पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन. अच्छा, पहले मैं सल्फ्यूरिक एसिड वाली इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूं, राइट? इसमें देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बना रहा है? इट फॉर्मिंग SO2. सबसे पहले हमने इसमें एटम्स को बैलेंस करना है. एटम्स को यहां पे वी हैव 2 ऑक्सीजन्स. ऑन दिस साइड वी हैव 4 ऑक्सीजन्स. दैट मीन इस साइड पे 2 ऑक्सीजन्स कम है. तो ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने के लिए यू विल ऐड द सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड. ऑक्सीजन्स बैलेंस हो गए. अब हाइड्रोजन्स बैलेंस नहीं है. वी हैव 2 हाइड्रोजन्स हियर, वी हैव 4 हाइड्रोजन्स. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हमें चाहिए. तो लेट्स ऐड 2 प्रोटॉन्स ऑन दिस साइड. ये बात समझ आई सबको? सो मैंने इक्वेशंस को अलग अलग कर लिया. एक में सल्फर जहां पे चेंज हो रहा था, फिर हम दूसरी को भी लिखेंगे. सो सबसे पहले आप ये करते हैं, ये बैलेंस द एटम्स. सल्फर पहले एक था. यहाँ पे वी हैव 4 ऑक्सीजन एंड ऑन दिस साइड वी हैड ओनली 2. To balance the oxygen, you need to add same amount of water molecule on the other side. जिस साइड पे भी ऑक्सीजन का. So I added 2 water. तो जो वाटर ऐड किए तो 4 हाइड्रोजन्स हुए. यहाँ पे 2 थे, मैंने इस साइड पे 2 प्रोटॉन्स ऐड. Do you think it's a balanced equation? Is it a balanced equation which you can see on the screen right now? Yes or no? Yes or no? Noor? ये बैलेंस है या नहीं है? सर बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड है. मैंने सिर्फ बेटा अभी एक वाले टारगेट कर रहा हूँ. ये बैलेंस नहीं है बेटे. So whenever you write the half equations, everyone, you just do not balance the atom, but you also have to balance the charges. So if you look at the atoms, it's perfectly balanced. It's perfectly balanced, but it is not balanced when it comes to charges. Look at the charges. Overall, मुझे बताएं overall reactant side पे क्या charge? What is the charge overall on the react? Sulfuric acid पे कोई charge नहीं, 0. एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, तो 2 प्रोटॉन इस साइड पे ओवरऑल 2+ चार्ज. कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव. और रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे क्या चार्ज है? ओवरऑल नो चार्ज, 0 चार्ज. इसका मतलब इट इज बैलेंस एज फार एज
the atoms are concerned, but it is not balanced as far as the charges. So मुझे या तो इस साइड पे भी 2 पॉजिटिव लिख दूं या इसको 0 कर दूं. तो पॉजिटिव चार्ज तो मैं कभी ऐड नहीं कर सकता ना, मैं इसको 0 कर सकता हूं बाय एडिंग द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए. तो ये बात हजम हुई या नहीं? जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो वो 2 पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, उससे न्यूट्रल हो जाएंगे. तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0. मेक सेंस एवरीवन? यस. इसका मतलब ये है कि सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिड्यूस्ड. देखो यहाँ पे सल्फर +6 है, बताया ना आपको, और यहाँ पे सल्फर +4 है. तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 में जाएगा, +4 में जाएगा. यस. बात हजम हुई है नहीं हुई? आई एम श्योर हो गई. अच्छा, अब हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे विच इज फॉर फॉस्फोरस. अच्छा, ये रिडक्शन इक्वेशन है. फॉस्फोरस गोज, ये नई चीज आपको शायद पता चल रही है, आई डोंट नो, मैंने पहले बताई थी व्हेन वी वर डूइंग द डाटा, आई डोंट नो मैंने बताई है. H3PO4, इसमें भी यही काम करेंगे. लेट्स बैलेंस द इक्वेशन. So we have 4 oxygens, so let's add 4 water. 4 water ऐड किए तो यहाँ पे we have 12 protons, यहाँ पे we have 3. So यहाँ पे कितने protons ऐड करूँ? 9H positives. 9H positive ऐड करने पड़ेंगे ना, ऐसा ही है. Atoms balance हो गए. Yes. Phosphorus 1, 4 oxygens and 12 protons on both sides. But the charges are not balanced again. Again 0 charge here, 9 पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ. बात समझ आई सबको? यस. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन इक्वेशन. अब इसको आपने ओवरऑल बैलेंस करना है. दिस वाज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन. अब हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखी, ओवरऑल. लेकिन ओवरऑल आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते अनटिल यू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स. आपने लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है. सो कैसे करेंगे? हाउ डू वी बैलेंस द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड्स? सो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये तो 9 रिलीज कर रहा है. तो इज देयर एनी नंबर जिसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करें और 9 को भी मल्टीप्लाई करें तो एक कॉमन नंबर आ जाए? मेरा ख्याल 9 को इस सारी को 9 से मल्टीप्लाई कर देते और इस सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते. मेक सेंस? यस. सो जब ये करेंगे तो वी विल गेट, मैं ओवरऑल इक्वेशन, रिएक्टेंट विल बी एडेड टू द रिएक्टेंट साइड, 9 सल्फ्यूरिक एसिड्स प्लस 9 2s are 18 प्रोटॉन्स. ये 18 बन जाएगा ना, बनेगा ना 18, राइट? अब मैं दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट लिखूंगा प्लस 2p. इसको लिखे जरा, मुझे किसी का फोन आ रहा है. अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, वी विल हैव क्लास एट अराउंड 9:30 और बिटवीन 10 आई एम इन क्लास राइट नाउ. यस, 9:30 और 10 के बीच में. ओके. Not sure, but there will be a class. Okay. ठीक है, मैं भी क्लास में मैसेज करूँ. हाँ जी, क्या आई ओवरऑल इक्वेशन? अच्छा जी, रिएक्टेंट्स कंफर्म हो गए. अच्छा, ये होएगा 8 वाटर, 8H2O. अब प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं मैं. ये दोनों रिएक्टेंट्स के मैंने रिएक्टेंट्स लिख लिए. लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. अब देखना जरा. सो यू हैव 9 सल्फ्यूरिक एसिड, ये 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारी को इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 9SO2 प्लस 9 2s are 18 वाटर. ठीक है. फिर मैं इसके प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, स्पेस कम है ना हमारे पास. इसके प्रोडक्ट्स में आएगा 2H3HPO3, सॉरी H3PO4 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया. अब एक और चीज भी करनी है, इतनी आसानी से तो नहीं ना ए लेवल्स में 1 नंबर आ जाएगा. एक और चीज हमने वो करनी है कि 2 स्पीशीज विच आर ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, अगर वो सेम है या नहीं भी आपने उनको कैंसिल करना है. देखो यहाँ पे वी हैव 18 प्रोटॉन्स, यहाँ पे भी 18 प्रोटॉन्स कैंसिल हो गए. एक और चीज सेम है, यू हैव 8 वाटर हियर एंड यू हैव 18 वाटर हियर. सो ये 8 वाटर ऑन द रिएक्टेंट साइड will be cancelled with the 8 water on the product side. तो product side पे कितने water बच गए? only 10 water. बाकी तो कुछ सेम नहीं है ना. तब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आएगा 9. उसने सम पूछा है. क्या क्वेश्चन है? उसने कहा कि सबका सम बताओ, सबका सम बताएं. तो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो मैच कर रहे हैं ना. सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस आर द ओनली 2 reactants. H3PO4, SO2 and water. So let's add
अच्छा, सबको हमने ऐड करना है। 9 + 2 11 + 9 20 22 और 10। 22 और 10 कितने होते हैं? ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गए। 32. अच्छा, हाँ, लेकिन इसका हमारे पास है एक सोल्यूशन। सो इज देयर एनी नंबर जिससे हम इसको डिवाइड कर दें? कोई मतलब सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 2p इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 9 से किया। 9 सल्फ्यूरिक एसिड्स, what is the value of a sum? They all are whole number balanced by oxidation numbers. Okay, सर 9 की जगह 5 आ रहा है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में 9 की जगह आप क्या कह रहे हैं? 4 2s are 8। oh my god, यहाँ पे मिस्टेक की ना यार, तुम लोग बताते नहीं। ये 4 2s are 8 प्रोटॉन्स है और 3 प्रोटॉन्स ये हैं, तो फिर यहाँ पे हमें 9 नहीं ऐड करें, तो यहाँ पे हमें 5 ऐड करें। ये शायद मेन मारवा है। दिस इज व्हाट वेयर वी गेट रॉन्ग। अब अच्छा, ये 5 आया तो फिर तुम्हें सारा कुछ उलट पुलट करना पड़ेगा। चले कर लेते हैं, इतना टाइम लगाया है दोबारा कर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस हो गया। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। सो 9, क्योंकि इस तरह का एक एमसीक्यू आना ही आना है ना। 9 सल्फ्यूरिक एसिड्स प्लस 9 2s are 18 H positives, राइट? सर 5 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो जाएगा? एक मिनट, अगर ये 5 है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी तो चेंज होंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन भी तो चेंज होंगे। यस 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 यस। अब देखो, मुझे बताओ इस रिएक्शन में जो सेकंड इक्वेशन है, व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड इन द सेकंड इक्वेशन? Positive इसमें 5. +5, तो फिर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। जी. यस। अच्छा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, तो इस सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारी को 2 से करेंगे, सो दैट वी गेट 10 इलेक्ट्रॉन इन बोथ इक्वेशन एंड देन यू कैन क्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक आएगा इंशाल्लाह। सो 5 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 10 H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कट गए, 10 10 कट गए। अच्छा, ये रिएक्टेंट उसके आगे। अब दूसरे के रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। 2 फॉस्फोरस प्लस 8 वाटर। ये रिएक्टेंट्स आ गए दोनों के। अब मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ। सो इसके बेटा आएगा 5SO2 प्लस 10 वाटर, राइट? अच्छा, एंड देन इसके प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं मैं 2H3PO4 प्लस 10H पॉजिटिव। यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब जो सेम चीजें उसको कैंसिल कर देते हैं। यू हैव 10 प्रोटॉन्स, यू हैव 10 प्रोटॉन्स। यहाँ पे 8 वाटर है, यहाँ पे 10 वाटर है, तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं। देखो हमारे पास 5 ये है और 2 7 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। 7 and 5 12, 12 and 2 14, 14 and 2 16। अब है कोई नंबर 16 वाला? D. डी इज द आंसर। इतनी जी, मेहनत sir. के बाद डी तो आना चाहिए। इनिशियली हमने ना वो पानी बेटा लेके आ, पानी का जग ले, पानी देंगे। हाँ जाओ नीचे पानी देखे, इनको ले जाओ नीचे। इसको जरा एक नजर सब लोग देखें ये कैसे किया हमने, इतना टाइम लगा के किया, अब तो ठीक होना चाहिए। देखो भाई, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू रोट द सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशंस। ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस किया। फर्स्ट बैलेंस द एटम्स इफ देयर इज ऑक्सीजन, balance the oxygen by adding the water on the other side, and then to balance the hydrogen you add protons on the other side, and then you need to balance the charges by adding the electron on the side where we have more positive charge to balance the charges. यही आपने फर्स्ट, फिर यही आपने रिडक्शन के साथ किया, यही ऑक्सीडेशन के साथ। यू रोट 2 आयनिक इक्वेशंस, फिर आपने दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी सूटेबल नंबर, एंड देन यू विल राइट द ओवरऑल प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड पे आ रही है, तो आप उसको कैंसिल करके जिस साइड पे जितने ज्यादा है वो लिख दिए। जिस तरह मैंने वाटर, प्रोडक्ट साइड पे 2 वाटर ज्यादा थे, यहाँ पे वी हैड 8 वाटर्स एंड यहाँ पे वी हैड 10 वाटर, तो मैंने इस 8 को उड़ा दिया और वहां पे भी 8 उड़ाए, तो 10 क्यों बच गए। नाउ यू कैन राइट ओवरऑल आंसर इज डी, विच इज number 16, right? Okay. So the temperature, the volume of ammonia produced against the time is measured
in 2 experiments. Okay, so the volume of ammonia produced against time, the enthalpy of the reaction is negative 92, which remains same no matter what आप reaction कम करो या ज़्यादा करो, enthalpy remains unaffected. In experiment 1, 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen react together at 45 degree and a pressure of 200 atm. So the equation is nitrogen reacts with hydrogen, and to make ammonia, it's a reversible reaction. That means it will proceed in both directions. So 3 of hydrogen. So 1 mole of nitrogen fully react with 3 of hydrogen. लेकिन हमें दिया क्या? उसने कहा 3 moles of hydrogen reacts with 1 of nitrogen. Perfect. You will get 2 of ammonia and a certain condition, 45 degree or 200 atm pressure. A graph shows, and that is experiment number 1, which is initially a little slower, but eventually it makes more product. Experiment 1 का gradient small है, लेकिन वो ज़्यादा product बना रहा है. इसका मतलब ये है कि more moles of the reactant are there, although the conditions are not that strong because the rate of reaction 1 is initially slow. A graph showing the volume of ammonia produced against time is plotted. Experiment 2 is then performed. Experiment 2 differ from experiment 1 in one condition only. उसमें condition हमने कोई change की. Condition क्या change की? Experiment 2 में देखो एक चीज ये है कि rate of reaction fast है, it's fast, but the yield of the product is low. Because देखो experiment 2 में 1 में ज़्यादा yield बन रही है, 2 में कम बन रही है. So it is the volume. This shows the volume of ammonia. Look at the volume. Okay. So मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है. मुझे बताएं which factor can increase the rate but decrease the yield since the enthalpy is negative. So temperature increase कर रहे होंगे. Iron catalysts have nothing to do with the yield. Helium gas cannot alter. Pressure of pressure अगर हम increase करेंगे तो rate of reaction बढ़ेगा. But do you think it can decrease the yield? Everything is gas. When you increase the pressure, equilibrium will shift to which side? किस side पे जाएगा equilibrium? Right or left? When you increase the pressure, equilibrium will go to the right side and you will get more ammonia. The yield will not decrease, rather it will increase. इसने तो कहा yield decrease हो गई. The only thing is D. क्या? Temperature आप increase करोगे, rate of reaction increase होगा. But since the enthalpy is negative, so equilibrium shift to the backward direction, yield would decrease and you would get experiment 2. That is the only possibility. Number 14. Which reaction has an equilibrium Kp that has no units? You must have the same amount of reactants and products. Same moles of reactant. वो तो A में ही लग रहे. इसका यही आंसर होगा. 2 moles of gases on the reactant side, 2 moles on the product side. A should be the answer. But why not D? देखो यहाँ पे we always write Kp is kilopascal over. देखो kilopascal यहाँ पे 2 है तो इसका 2 कर देंगे. इसके भी 2 है, kilopascal का स्क्वायर, और इसका 1 है तो kilopascal. इसमें 2 से कट जाएगा और still you have इसका आएगा kilopascal -1. That's the unit. So यहाँ पे when there are not equal moles, उसके specific कुछ ना कुछ units आएंगे. But when you will be having same moles of reactant and product, you would make sense, everyone? अगेन को नीचे ले जाओ यार. नीचे ले जाओ मैंने कहा. 15 everyone. It's a favorite question, Boltzmann distribution curve. 15 करें सब लोग, शाबाश. इधर खड़ा हो रहा है, क्लास इन्वेट कर दी बच्चों. फातिमा मिलता चल वो देखो मीरा बापी. मेरा भी ये देखो फातिमा कितनी बड़ी होगी तुम्हारा. ये देखो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. चलो भाई ये सर नीचे चलो. ये सर नीचे चलो. ये चलो लाइट ऑफ होगी ना, नीचे चलो. शाबाश. यस 15 कर लिया सबने. 15 is okay. So
Gas Q decomposes slowly at room temperature. The Boltzmann distribution Q at room temperature is shown. This is activation. This is number of particles. Which change occur when a catalyst is added? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ activation energy will move to the left. So the number of the peak will move to the right. There is nothing happen. The number of particle with enough energy to take up the number of particle. मेरे ख्याल ये बात ठीक है क्योंकि there will be greater proportion of particle that have energy greater than kinetic energy. So that is correct. Okay, so kinetic energy of energy change नहीं होती, catalyst add करने से energy change नहीं होती, energy same रहती है. लेकिन जिन particles की पहले इतनी energy चाहिए थी उनको barrier cross करने के लिए, अब activation ही कम, particles की energy same रही, लेकिन जो required amount of energy थी वही decrease होगी. The value of EA decreases moving the vertical dot line to the right of the diagram. जब activation energy decrease होगी तो right पे जाएगी diagram या left पे जाएगी? It should move to the left. Come on, Cambridge scammer. Okay, so which statement is correct? Aluminum chloride has a giant. Aluminum chloride does not have a giant structure. Aluminum chloride का structure वैसे क्या होता है? Aluminum chloride को हम क्या बनाते हैं? आपको याद है एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जब हम डायमर बनाते थे इस तरह का, किस किस को याद है? एक और एल्यूमिनियम बनाते थे. इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इट इज नॉट जायंट बट इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट होता है. सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड. तो डिसॉल्व का मतलब है न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाती है, एसिडिक तो नहीं बनाती. हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा तो एसिडिक हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन सिलिकॉन क्लोराइड prevent it from reacting with water. Silicon chloride react with water to form acidic solution. This is how silicon chloride added to water to form white PPT and a fume. So acidic solution and white precipitate. तो D होगा ठीक इसका फिर. Phosphorus chloride is added to water resulting conduct electricity. ये कैसे ठीक है? How do you think it conduct electricity? कौन सी चीज होगी जो conduct कराएगी? So we know phosphorus chloride H3PO4. Oh sorry. PCl5. Phosphorus 5 chloride added to water, it form phosphorus acid H3PO4 and HCl. Okay, so since you will get aqueous solution of acidic, strong acidic solution banega, so ions can move, in aqueous solutions, and because of the movement of ions, electricity is passed. Number 70, a mixture of calcium carbonate, calcium nitrate, strontium carbonate, strontium nitrate is thermally decomposed. Thermal decomposition reaction of each substance goes to completion. Each substance is anhydrous. How many different products are formed? ठीक है. अच्छा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो आप करें ना जरा सब लोग ट्राई. 2 मिनट दिए आपको, शाबाश. सब लोग ट्राई करेंगे खुद से. You have not 2 minutes but less than 2 minutes. I want everyone to try. मैंने formulas लिख देता हूँ for your. अच्छा वो जो दो होंगे वेदर इट इज स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, उसमें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे भी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ही बनेगा. सो टोटल कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? 1 2 3 4 and 5. क्योंकि ये दो तो ऊपर भी कंसिडर कर लिए ना हमने. ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस, मेक सेंस. क्योंकि कार्बोनेट में उसमें भी कार्बन डाई बनेगी और नाइट्रेट में उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बनेगा. मेक सेंस एवरीवन? इट शुड बी बी. देयर इज नो पॉसिबिलिटी अदर देन बी. ओके, W is a solid that reacts with water to produce alkaline solution. So what substance W could be? It's a metal oxide or non-metal oxide? सर क्या Solid है? repeat कर सकते हैं? पिछला वाला. हाँ कर देते हैं. देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, it is thermally decomposed and calcium nitrate. तो क्या बनाएगा? It form calcium oxide and carbon dioxide. And calcium nitrate produces again the same metal oxide, nitrogen dye and oxygen. Imagine now you have strontium carbonate. The strontium carbonate will form the same carbon dioxide, but it will form strontium oxide. And strontium nitrate भी strontium oxide बनाएगा, nitrogen बनाएगा और nitrogen. तो strontium, तो ये आपके पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो उस मिक्सचर से मिलेंगे. अब देख लो कितने टाइप के फॉर्मूलास आपके सामने लिखे. कितने लिखे हैं? 5 ही लिखे हैं.
देखो ना, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो गया 1, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड 2, कार्बन डाइऑक्साइड 3, नाइट्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 5। इसके अलावा नई चीज क्या बनी? ये तो 2 वही है जो ऊपर है ना? 5 ही बने ना, फाकिया बेटे। W solid reacts with water. Alkaline solution should be metal oxide that reacts with water, right? The addition of 2 drops of sulfuric acid to this alkaline solution form white PPT. अब तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि ये बेरियम है। ये बेरियम है। क्यों मुझे डाउट नहीं हुआ? क्योंकि बेरियम सल्फेट is insoluble and form white PPT. Magnesium hydroxide reacts with water, ठीक है, मान ली बात। But can magnesium sulfate form white PPT? मैग्नीशियम सल्फेट तो सॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम तो होगा ही नहीं। फास्फोरस ऑक्साइड तो एसिडिक बनाएगा भाई, सी होना चाहिए इसका। क्लोरीन गैस इज रिएक्टेड विद कोल्ड aqueous sodium hydroxide. Let's write the equation. So you get NaCl here. NaClO is a disproportionation reaction and you'll get water as well. Chlorine is both oxidized and reduced. इसका यही ठीक है, disproportionation यही ठीक है ना भाई? ये तो आप सबको पता है कि इसमें क्लोरीन 0 है, क्लोरीन is -1 here and chlorine is +1 here because oxygen is -2, this sodium is +1. So you see chlorine goes from 0 to -1 reduction to 0 to +1 oxidation. बाकी ठीक क्यों नहीं है? Chlorine is neither. Chlorine is oxidized, not reduced. Chlorine is reduced, so chlorine undergoes both oxidation and reduction. Sodium is added to water to form solution Y. Sodium hydroxide and hydrogen gas. Is this what you will get? Yes. The pH of solution Y is measured. It would be strongly alkaline above 12 or 14 के बीच में होगी. When powdered substance X is added to solution Y, the pH falls. इसका मतलब ये है कि वो जो powdered substance X है, that must decrease the pH. इसका मतलब ये है कि वो उसके जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, उसके OH आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर। वो 2 चीजें कर सकती हैं, या तो उसमें कोई एसिड ऐड कर दो तो वो न्यूट्रल कर देगा, डिक्रीज कर देगा, या कोई ऐसी चीज ऐड करो जो हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और वो प्रेसिपिटेट बनाए, हाइड्रो ऑक्साइड को इनसॉल्युबल कर। बात समझ आई? मेक सेंस? सो हाइड्रो ऑक्साइड को कम करने के 2 मेथड्स, आइदर यू रिएक्ट इट विद एसिड, हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल होता जाएगा, और यू ऐड एनी मेटल कंपाउंड, एनी कैटाइन which react with hydroxide to form precipitate of it. जो precipitate बनेंगे तो हाइड्रोक्साइड की concentration क्या होती जाएगी? It start decreasing. Let's start with option A. Which two compound? अच्छा, वो जो compound है, that is compound X. Which two compound could be substance X? अच्छा, okay, ये तो मुझे यही लग रहा है। देखो, when you add magnesium chloride, देखो आपके पास you have solution of sodium hydroxide. That means you have so many hydroxide ions. Imagine you add magnesium chloride. So when you add magnesium chloride, magnesium would react with hydroxide ion to form magnesium hydroxide, and we know magnesium hydroxide is insoluble because top वाले hydroxide insoluble होते हैं. So this would decrease the concentration of hydroxide ion. ये ठीक है. Aluminum hydroxide भी insoluble होता है, it form white PPT. So the moment you will add aluminum, so it would decrease the concentration. ये बात ठीक लग रही है, but let's check that. Magnesium is correct, but potassium तो soluble होते हैं ना. Sodium soluble होता है, यहाँ पे भी sodium, तो it should be A. Make sense everyone? Sodium तो all soluble है, potassium भी soluble है. Sodium, potassium, ammonium याद है O1 में, I mean O levels में पढ़ा था हमने. So magnesium hydroxide and aluminum hydroxide both are insoluble. टाइम क्या हो रहा है? The table shows statements about some of the properties of halogens and their compounds, explanation for their properties. Which row shows the correct statement about the property and correct explanation for the statement? Start with A.
Iodine is solid. ठीक है, iodine is solid. Perfect. Do you think it is due to the bond strength? Iodine की the bond strength सबसे weak होती है. But why it is solid? It is due to the stronger ID forces because of greater number of electrons. A is incorrect. Decomposition of hydrogen iodide is more endothermic than hydrogen chloride. ये तो statement ही incorrect है. मुझे ये बताएं कि HCl को break करना ज़्यादा आसान है या HI को break करना ज़्यादा आसान है? Which require more energy? It should be HCl. Because उसका जो bond length है वो कम है क्योंकि क्लोरीन का atomic radius छोटा है. So bond length कम है, stronger bond है. So HCl is more endothermic, not HBr. उसने कहा कि HI is more endothermic, which is incorrect. When chlorine is bubbled through aqueous potassium iodide, a purple solution is seen. Okay. मुझे ये बताएं, ये भी statement incorrect. So imagine you have potassium iodide and you are passing chlorine. So when you bubble chlorine, chlorine is more reactive. It will displace the iodine. I mean iodide ions. You get KCl and you will get iodine solution. Aqueous. What is the color of aqueous iodine? किसको याद है? The color of aqueous iodine. Anyone in the class? The color of aqueous iodine. Come on. It's brown. Brown, yeah. Yeah. So this is incorrect state. No purple solution can have. Purple क्यों बनेगा? Chlorine is strongest. Chlorine is stronger oxidizing agent, but the statement is it should be D. But क्यों है ये? When concentrated sulfuric acid is added to potassium iodide, ये तो it would be a redox reaction. We know sulfuric acid can oxidize iodide ions to form H2S, and iodine बनेगा और साथ में water बनेगा. ठीक है? Iodide ions are being oxidized to iodine. Iodide ions are oxidized to iodine by sulfuric acid. This is a correct statement. So a complete knowledge of halogens and their reaction with sulfuric acid is required. इसकी हमने detail की भी when we were doing that ये reaction जब हम कर रहे थे. Which statement describe the property of ammonium ion? Property of ammonium. Ammonium का formula क्या है? What is the formula of ammonium ion? It is NH4. One bond is dative, and other three are simple covalent. So इसका जो bond angle है वो 109.5 degree and same to CH4 tetrahedral, right? The NH covalent bonds ammonium are identical to each other. ठीक है? Ammonium ion has a pyramidal shape. No, it does not have a pyramidal shape. Aqueous ammonium sulfate reacts with diol HCl. No, we know that whenever it's ammonium, it doesn't react with acid. Rather, it reacts with alkalis. ये किससे react करती है? Alkalis से react करके ammonia gas बनाती है, not with acid. This is incorrect. Aqueous ammonium ion are weak. Aqueous ammonium ion. मुझे ये बताओ कि जो ammonium ions हैं, do they gain or lose proton when you put them? जब इसका किससे reaction कराते हैं, they lose proton and they become ammonia gas. Since they lose proton, they behave like an acid. यहाँ पे तो वो कह रहा है base, which is again incorrect. So all four bonds, as far as उसकी जो shape है, although one is coordinate, but coordinate has a very exact same bond length, shape, and everything as compared to the other bonds. Other three statements are incorrect. It should be D. That's why the bond angle is 109 and it is a perfect tetrahedron. So it should be D. Make sense, everyone? Okay. Catalytic converter are fitted in the exhaust system for many cars. Okay. Gas X causes acid rain, releases to the air. So gas X acid rain, it removed from the car exhaust. तो पहले ये देखना कि acidic gas होनी चाहिए. Carbon dioxide is not acidic. It's a greenhouse. Slightly acidic भी कह सकते हैं, but it's a greenhouse. हमें पता है कि acidic gas कौन होती है? Oxide of nitrogen and oxide of sulfur, right? Carbon monomer is a neutral. Hydrocarbon are not acidic. तो फिर nitrogen dioxide ही बचता है. Yes, it was easy, by the way. In the general formula of which class of compound, organic आ गई सबकी फिर. In the general formula of which class of compound is the ratio of hydrogen atom to the ratio of carbon atom is highest?
तो हाईएस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन में कहाँ है? अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है सर, CnH2n। यस, सर आप पिछला क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे नहीं होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा न्यूट्रल होता है, इट्स अ न्यूट्रल गैस, इट्स नॉट इवन Okay. एसिडिक, राइट? ओके सर। Okay, so the general formula of alcohol is CnH2n। उसने कहा है कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, हाइड्रोजन एटम टू कार्बन रेशियो। तो यहाँ पे लेट्स इमेजिन हम एक अज्यूम कर लेते हैं, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन ओन्स। तो यहाँ पे इफ देयर इज 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऐसा ही है ना, अल्कोहल्स में जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन कितने होंगे उसके कंपैरिजन में 4। कोई और अज्यूम करो, लेट्स से 5 कार्बन है, तो कितना होगा? 2n+1। तो देखो 5 कार्बन है, नहीं रेशो गलत तो नहीं लिख दी हमने, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे रेशो क्या बनी? ये रेशो तो खराब बन रही है। सो जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा। ओके, अब एल्डिहाइड्स में देखते हैं। एल्डिहाइड्स में द जनरल फॉर्मूला, इसमें एल्डिहाइड में ये होता है बेटे कि देखो इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO। सो इसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह इसमें है, 2n+1 है, 2n+1 उसमें भी एक हाइड्रोजन है और उसमें भी, लेकिन एल्डिहाइड्स में कार्बन एक ज्यादा आ गया, राइट? इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। हेलोजिनो एल्केन्स CnH2n+1 और X। इसका मतलब ये है कि आंसर मस्ट बी ए। 24 का आंसर को चेक करेगा, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया, तो कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, रेशो खराब हो जाएगी डबल बॉन्ड से। हेलोजिनो एल्केन में यही है ना, हेलोजिनो एल्केन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सा हमें रिप्रेजेंट हेलोजन, और वट एवर द कार्बन हाइड्रोजन 2n+1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2n+1 के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ये हैं और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, ऐसी रेशो कहीं भी नहीं बन रही। मेक सेंस? तो इट शुड बी ए। सो द अजीब क्वेश्चन, लिटिल बिट अजीब क्वेश्चन। ओके, which statement is correct? Adding sodium oxide to water gives the solution a lower pH। देखो सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे तो सोडियम तो ऑक्साइड तो यार बेसिक होता है ना, तो पीएच हाई करेगा। एडिंग सोडियम ऑक्साइड टू वाटर गिव्स अ लोअर पीएच देन सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड तो वाटर में ऐड ही नहीं होता, इट इज इनसॉल्युबल। तो ये तो सोडियम ऑक्साइड तो स्ट्रांगली अल्कलाइन बनाएगा, हाई पीएच बनाएगा। Oxidation state of sodium in its chloride is higher than the silicon in its chloride। तो सोडियम NaCl होता है और सिलिकॉन SiCl4 होता है, ये दोनों के क्लोराइड्स। तो भाई सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, सिलिकॉन का +4। सो इट्स सिलिकॉन दैट हैज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट सोडियम। ये भी इनकरेक्ट। Atomic radius of sodium is larger than silicon। They both are present in the same period। Across the period atomic radius क्या होता है? Decrease। If this is sodium, this is magnesium, aluminum, and this should be silicon। So sodium का atomic radius is larger। Melting point of chloride of sodium is lower than the melting point of chloride of। मुझे ये बताएं कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है या सिलिकॉन का? डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग। तो सिलिकॉन क्लोराइड में तो सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट है और सोडियम क्लोराइड में आयोनिक है। आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, दे हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो दिस क्लोराइड मस्ट हैव हाई melting point than silicon। Okay, 26 everyone। Z is a gaseous hydrocarbon which have a density। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करें जरा, 1 मिनट दिया आपसे। प्लीज रीड द स्टेटमेंट एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। 10 रुपये नाम मिलेगा जिसने सही दिया। हाँ जी, कर ली कोशिश।
Done. जी सर डन. अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है, let's read the statement everyone. Let's read the statement. किसने कर लिया? Raise your hand. शाबाश हसन एंड शावेज खान, दो लोगों ने किया बस. ओके. Z is a gaseous hydrocarbon with a density, और इसमें density given है this much gram per cm cube under room condition. तो density का फॉर्मूला होता है mass over volume. We know the mass 3.50 times 10 raised to power negative 3 in 1 centimeter cube. It says cm cube per cm. So the mass ratio volume, that's what we will be doing. So the mass and volume is given. Z reacts with excess of hot concentrated KMnO4, only one type of carboxylic acid. अच्छा, पहले तो मैं इसका mass निकाल लेता हूँ 1 मोल. मुझे इसका MR पता चल जाएगा. मुझे बताइए ये 1 cm क्यूब है. 1 cm क्यूब में इसका इतना mass है. तो किसी भी चीज का जो 1 मोल होता है, 1 मोल, उसके कितने cm क्यूब होते हैं? क्योंकि सिंस इट सेज गैसियस हाइड्रोकार्बन, तो cm क्यूब में कितने वॉल्यूम होगा कि उसका 1 मोल बनेगा? 24,000 cm क्यूब. So if it has this much mass in 1 cm cube, what mass must be there in 24,000? जी हसन, तो पहले mass कैलकुलेट करें ना सब लोग 24,000 में. That will be the MR of that thing. Yes हसन. Sir, I got 84. 84. 84. ये बात समझ आई मैंने क्या किया? I No, just sir. use the information. Okay, I just use the information from the density. Density is mass over volume. So the mass is 3.5. The mass is 3.50 times 10 raised to power negative 3. And the volume is cm cube per cm cube. एक cm cube में इतना mass है. That is what is given in the question. If you look at the statement, right? अब मैंने रेशियो लगा लिया. मैंने लिखा कि if इतना mass in इतने volume, एक 1 volume में इतना mass है, तो 24,000 में कितना होगा? Why I chose 24,000? Because that is the volume for 1 mole of any gas. तो वो जो mass आएगा वो 1 mole का mass होगा, and that you said 84. ऐसा ही. अब हमने इनमें से चेक करना है कि किसका mass 84 है, क्योंकि ये दो ऑप्शन सेम है, तो इन दो में से किसी एक का होगा, ये मैं बता रहा हूँ. चेक कर लेते हैं. हेक्सीन का फॉर्मूला है C6H12. हेक्स 6 कार्बन होते हैं, इन डबल बॉन्ड है. सो 12 times 6 प्लस 12 हाइड्रोजन्स, तो ये हो जाएगा ओके. सो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 इज 84. 84 ही बन रहा है ना? जी सर, क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी कॉल बैक करता हूँ. सो 84 है. देखो मेरे लॉजिक ठीक लगी है. अब इसमें हमने देखना ये है, सेकंड स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है. Z reacts with hot concentrated to form one type of carboxylic acid. तो मुझे ये पता है कि जब डबल बॉन्ड एग्जैक्ट मिडल में होगा, then it would break. देखो ये हेक्स 2 है या 3 है? What is this? Is this hex 2 or 3? Hex मतलब 6 कार्बन और 3 का मतलब है there should be double bond with the third carbon. इसको जब ट्रीट करेंगे विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, एक्सीलेंट. इसको जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड से ट्रीट करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों साइड सेम नहीं आएंगी. ये भी प्रोपानोइक एसिड बनेगा, ये भी प्रोपानोइक एसिड बनेगा. मजेदार. यस सब समझ. So Yes, it's answered. Make sense? Yep. Yeah. Okay. Compound X can be oxidized to compound Y. ये तो शायद कल भी किया था हमने. Compound Y give yellow PPT. उसका मतलब compound Y. What is compound X? अच्छा. So it should be butane 2-ol. How do I know? देखो ये butane 2-ol है. अच्छा, butane 2-ol की मैंने ऑक्सीडेशन की, तो ये क्या बनेगा? It will form, ये कार्बन, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा ना. तो if carbonyl has CH3 directly attached, it can give white PPT. तो फिर जो कंपाउंड X है, ये कंपाउंड X है, इसकी ऑक्सीडेशन की, ये कंपाउंड Y है. उसने कंपाउंड X का पूछा, तो X should be butane 2-ol. Make sense everyone?
Yes, 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 Hassan bhai, want to say something? जी जी Organic सर. is ऑर्गेनिक इज रिलेटिवली इजी. जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन, यू नो, इफ यू वरीड अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, यू कैन स्टार्ट विद ऑर्गेनिक. पीछे जाएं. फिजिकल केमिस्ट्री में एक पीवीएनआरटी का क्वेश्चन टाइम खाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन टाइम खाएगा, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, यू नो, सम टाइम वी हैव टू ड्रॉ द रिएक्शंस एंड देन वी हैव टू सी के क्या पॉसिबिलिटी बन रही है. सो वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पे मोल्स के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड है, वो टाइम डेफिनेटली कंज्यूम करते हैं, जिस तरह आई थिंक हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसी पेपर में. एक्वस NaOH reacts with 1 bromopropane to give propan 1 amount. देख लेते हैं क्या है. तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा 1 bromopropane. This is your 1 bromopropane. NaOH react करेगा. It is a hydroxide ion. Lone pair will attack here. Partial positive, partial negative. The bond will break. क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो ये SN1 फॉलो करेगा, SN2 जाएगा. दिस इज प्राइमरी, तो इट विल फॉलो SN2. एक ही स्टेप में हो जाएगा. बात आपको पता होनी चाहिए, कल भी इसका रिएक्शन किया था. What should be included in the diagram in the first step? तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपके सामने बना दिया ना. A curly arrow from the lone pair, curly arrow from the lone pair of the OH into the carbon partial positive. मेरा ख्याल ये बात ठीक कर रहा है. तो अच्छा आदमी है. पहला ऑप्शन है curly arrow from the carbon, never. Curly arrow from CBr, never. Homolytic fission, it's not, you know, कोई UV light नहीं है. Homolytic, do you think a homolytic fission is happening? Homolytic fission में bond equal break होता है, आधा इधर इधर. यहाँ पे तो पूरा bond shift हो रहा है bromine. It's not homolytic. It should be an A. In which reaction organic compound is oxidized? We know that ये तो reducing agent है, इसको तो वैसे उड़ा दे. Sulfuric acid is oxidizing agent. Toluenes is oxidizing agent na. So toluenes react with aldehyde. Aldehyde are oxidized by toluenes and phenolens, but does not oxidize by, and ketones are not oxidized. So that's how you distinguish between aldehyde and ketone. Toluenes करोगे तो silver mirror आएगा, और वो reaction कौन सा होगा? Oxidation. और 2,4-DNPH डालोगे तो कंडेंसेशन होगा. तो आई बिलीव दिस इज, ये तो सिंपल कोई भी रिएक्शन होगा. अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है? यू गेट एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे यू हैव एस्टर. ये कौन सा रिएक्शन होगा? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन डी वुड बी. कौन सा रिएक्शन? शाबाश. एस्टर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो पॉसिबिलिटी है भी, ये नहीं है. स्टेरिफ के एस्टर जो है वो हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल सेपरेटली. मेक सेंस? 1 mole of each following 4 compound are reacted with air. Separately reacted with excess of sodium, sodium carbonate. ये भी कल किया था. तो सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोनेट के साथ सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट इज 1 mole of each compound. Which compound produces the same volume of gas with each of these 2 reagents? Okay, let's start with it. इसमें तो अल्कोहल है, ये तो कार्बोनेट से रिएक्ट ही नहीं करेगा. इनकरेक्ट. ओके, अगर मैं इसको सोडियम से रिएक्ट कराता हूं तो सोडियम डज रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड. इट प्रोड्यूसेस 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक यहां से 1 mole जाएगा. बट जब सोडियम कार्बोनेट से करवाएंगे इसको, तो सोडियम कार्बोनेट तो सिर्फ इसी को डिस्प्लेस करेगा. तो सोडियम कार्बोनेट से इसके रिएक्शन में हाफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. उसने कहा सेम वॉल्यूम ऑफ गैस. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. ये तो एल्डिहाइड रिएक्ट ही नहीं करेगा. अल्कोहल है तो ये सिर्फ सोडियम से करेगा, कार्बोनेट से नहीं करेगा. सी करेक्ट होगा. सो इसमें तो अल्कोहल है ही नहीं. वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यू रिएक्टेड विद सोडियम, इट विल रिएक्ट with both. You reacted with sodium carbonate, it will react with both to produce the same amount of the gas, which is hydrogen gas. 31. Which reaction will distinguish between propan 1 and propan 2? So both are different type of alcohols. Propan 1 कौन सा alcohol है? Primary. Propan 2 कौन सा alcohol? Secondary. So primary और secondary को हम कैसे distinguish कर सकते हैं? KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दें, बोथ विल बी ऑक्सीडाइज्ड.
a primary alcohol will give you aldehyde and carboxylic acid, secondary will give you ketone, but there won't be any visual, कोई वो नहीं होगा. KMnO4 will decolorize, so we won't be able to distinguish. K2Cr2O7 will be, goes from orange to green. Both primary और secondary alcohol can be oxidized. Dehydration इसकी कर दें. Dehydration करेंगे तो alkene बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसमें भी यहाँ आ जाएगा, तो सेम alkene बन जाएगी. ब्रोमीन ऐड करेंगे, ब्रोमीन दोनों में कलरलेस हो जाएगी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश. माइल्ड ऑक्सीडेशन करें पहले, ये बनेगा, दिस विल बिकम एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडेशन, एंड दिस विल बिकम कीटोन विद ऑक्सीडेशन, एंड देन यू विल ऐड फेलिंग. तो फेलिंग के साथ ये बनाएगा प्रेसिपिटेट और ये नहीं बनाएगा. सो दिस इज अ गुड वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल. Followed mild oxidation to get aldehyde and ketone, then add either Fehling or Tollens to distinguish K क्या है. यहाँ पे मसा आने वाला है. Compound T has a skeletal formula. Which structural formula is the isomer? बनाए चेक करें ना जरा सब लोग, क्या isomer बन सकता है इसका. शाबाश. बच्चों की ओ लेवल्स की क्लास थी एट 7 शायद, तो आज थोड़ा टाइम चेंज हुआ है. बच्चे क्लास में मैसेजेस क्या कर रहे हैं? इमेजिन ओ लेवल्स के बच्चे, यस सर इज टेरिटर नॉट रिप्लाइंग, धोखा दे गए हमें. मेरे भी आपके जूनियर्स आप लोगों से भी ज्यादा थे. अगर मैसेजेस पढ़ के सुनाओ आपको लगना है ऐसे तो छोटे भाई को मैसेजेस कर रहे हैं. Okay, so compound T has a skeletal formula shown. Compound T का formula ये है. इसका नाम पहले लिख लेते हैं, क्या नाम बनेगा इसका? There is a branch here. There is a branch. ये first carbon, second, third carbon, fourth, fifth, sixth, and seventh. Branch on fifth, branch on third, branch on second. Total 7 है. तो क्या इसका बनेगा? 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल और हेप्टेन. ऐसा ही है, सबको यही लग रहा है. इसके कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लो और दे. इसका नाम क्या है? ए का नाम क्या है? दिस इज माय लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. ब्रांच ऑन सेकंड, ब्रांच ऑन थर्ड, ब्रांच ऑन 5. ये तो बिल्कुल वही नहीं है टी, ये तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है. वो तो आइसोमर पूछ रहा है. ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नो, हाँ, इसमें कार्बन सेम है, ऐसा ही है ना. 6 कार्बन है वहां पे, नहीं इसमें एक कार्बन कम है. इनमें टोटल कितने कार्बन थे? 7 मेन चेन में और 3 ये है, तो 10 कार्बन है. इसमें तो कार्बन ही 9 है. 6 7 8 और 9. ये तो आइसोमर ही नहीं हो सकता, नॉट एलिजिबल. इसको देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये भी नहीं हो सकता, फिर डी आंसर होगा. सो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज करेक्ट. तो कार्बन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ए और डी में पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ए इज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला, एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल एज द कंपाउंड टी. मेक सेंस एवरीवन? यस. थक गए हैं हम. ऑलराइट, द डायग्राम शोज a simple structure for coenzyme Q10. coenzyme Q10 का स्ट्रक्चर ये गिवन है और उसमें देखो एक्सटेंशन एक इसकी हो रही है कार्बन की और इस कार्बन की, और इस कार्बन के ऊपर ये चीज लगी हुई है. पूछा क्या? Which row describe the structure of coenzyme correctly? अब इसका स्ट्रक्चर अगर हमने सही ढूंढना है तो क्या है? इज इट एन एल्डिहाइड? कहीं पे एल्डिहाइड नजर आ रहा है आप? कहीं पे CHO एंड पे? इट्स अ कीटोन. कीटोन, कीटोन,
राइट, कीटोन है ना ये, कीटोन है, एल्डिहाइड तो नहीं है, दिस AB तो नहीं है, इट्स अ कीटोन राइट। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल, पाई बॉन्ड्स कितने, ये N है, और वन मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स, वन टू थ्री फोर फाइव, हम तो N+2 लिखा, 1 2 3, अच्छा, number of pi bonds in one molecule, 1 2 3, इसका आंसर आई मीन क्लोजेस्ट आंसर तो डी बन रहा है, पर pi bond तो इसमें ज्यादा है, आंसर डी है इसका, जी but sir, how इसलिए come it's four are in the main ketone thingy and then in the polymer एक है, तो वो N describe करता है उसे। okay, so N is this whole thing, that was what N is this जी। whole thing, and then 4 are in the thingy, right? Okay, I got it, so it should be D. Make sense everyone? Of course 2 तो नहीं हो सकता ना, ये तो वैसे incorrect हो गया। Okay, the molecule in Liminon contains 6-membered ring, okay, that is the only cyclic component structure, so you have 10 molecule carbon है, एक compound है lemonine, which have, इसमें total 6 carbon, total 10 carbon है, but जो cyclic ring है that is 6-membered, बाकी 4 carbons बाहर बना देते हैं, बना दिए, बाहर बना दिए। Which volume, अच्छा हाइड्रोजन्स भी पूरे करने ना हम, 10 हाइड्रोजन्स, सॉरी 16 हाइड्रोजन्स पूरे करें, कैसे करें? अच्छा ये इन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने चाहिए, अब पता नहीं कितने, अब हाइड्रोजन से पूरे को चेक कर लेते। सो 2 हाइड्रोजन, साइक्लिक में 2 हाइड्रोजन होते हैं, इफ देयर इज 2 बॉन्ड्स, 2 2 2 and 3, so it is C10, but how many hydrogens? 3 5 9, sorry 3 5 7 10, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो हैं। am I audible now? यस सर। जी सर। जी सर। आवाज आ रही है बेटा मेरी अब? जी सर। जी सर आ रही है। जी सर। माइक की बैटरी, अच्छा, वेयर इज द स्टाइलिस्ट?
So the question is, if you have, हमने स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया, अब क्वेश्चन उसने पूछा है which volume of hydrogen at room temperature and pressure is required. डबल बॉन्ड्स के साथ कितने हाइड्रोजन चाहिए विद 1 मोल ऑफ, इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 2 डबल बॉन्ड्स। तो एक डबल बॉन्ड के लिए हमें एक हाइड्रोजन चाहिए होता है, याद है ना, एक इसके पास जाएगा एक इसके पास, तो डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल। सिंस वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स तो वी नीड 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है 24, तो 2 हाइड्रोजन का होगा, इट शुड बी, मेक सेंस एवरीवन? यस यस, दे डू नॉट हैव, बट अगर डबल बॉन्ड बाहर है then there is a possibility now. सर आप फिर से रिपीट करें कौन सी चीज बेटे? ये एक्सप्लेनेशन वाली। या Okay, so we initially discovered the structure, and the structure have 2 double bonds in it. So the question is, says which volume of hydrogen at room temperature and normal conditions required to react completely with the double bond present in that limonene. Now the idea is one double bond require 1 hydrogen to fully react, 1 hydrogen molecule, and the volume of 1 hydrogen molecule is 24 decimeter cube, because that is the volume of 1 mole of hydrogen. If you have 1 mole of hydrogen gas, that occupies 24. In this structure we have 2 double bonds, we need 2 hydrogens, so we need double the volume of 24, which should be 48. Up to this number. Sense? या Yes. 1 bromopropane reacts with hot ethanolic. देखो ethanolic के साथ करेगी तो elimination होगा और alkene बन जाएगी. Whenever any halogen reacts with hot, ethanolic, it should be an alkene. तो propane है तो ये क्या बनेगा? Propene. Where is propene? Here is propene. Right? Makes sense? A sample of pent-2-ene 4-ol. Pent बना ले पहले, 2-ene and 4-ol contains all possible stereoisomers of this compound. How many stereo? तो बताएं ना जरा कितने स्टीरियो बन सकते हैं? Is there any chiral center? There is a chiral center. Is there any double bond that can give cis trans? There is a double bond, and both carbon have different attachments. I think 4 देगा ही, अगर कोई बच्चा चेक कर दे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मसला होता है। 5 तो नहीं दे रहा कहीं। I mean, 1 optical है, 1 cis trans है, 4 ही होगा। तो मुझे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पे डाउट होता है। Is it 4 or 5? 36 का। C or D? Anyone in the class? C. C ठीक है, कंफर्टेबल, कुछ तो ठीक हुआ। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जितने हम नंबर्स निकालते हैं उसका हमेशा एक ज्यादा ही होता है। तो देखो ना, इसमें एक कायरल सेंटर है और एक डबल बॉन्ड है, एक सिस बनेगा इसका और एक ट्रांस बनेगा। 2 ये हो गए, कायरल का एक और उस कायरल का मिरर इमेज, इट शुड बी C। करीब पहुंच गए इससे पेपर। कल तो मैं बहुत थक गया था यार। Yesterday I was sitting at the 3rd floor, AC was not working, किसी ने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। आप यकीन करो, I was बेहोश होने वाले। और आपके बाद एक there was another class, 2 hours की क्लास आपके साथ थी, and then there was another class. It was a continuous 3-4 hours. सारी मेरी जो stored energy थी ना, फिर निकल गई। So the diagram shows the structure of 2 esters. Thank you. This is an ester. There is another ester. Okay, that are formed by ripening apples. Apple खराब हो जाते हैं। Which carboxylic acid formed when these ester hydrolyzed? तो देखो carboxylic acid, इसमें से ये साइड जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली साइड होती है ना, that give carboxylic acid, right? 37 नहीं किया हमने, कर लेते हैं अभी करेंगे। अच्छा पहले ये कर, इसमें बनेगा कंपाउंड X में बनेगा यार एथेनोइक एसिड, तो ये बात ठीक है। कंपाउंड Y में बनेगा कार्बन 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 कार्बन, सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच है, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड के साथ एक ब्रांच है, इट शुड बी P। मेक सेंस एवरीवन? यस। ओके, 37। व्हिच पेयर ऑफ reagent react to produce a chiral carbon? इनमें से कौन है जो आपस में रिएक्ट करेंगे और chiral सेंटर बनेगा? ये तो एस्टर बनेगा, तो एस्टर में तो कभी chiral नहीं आता। आई डोंट थिंक एस्टर में कोई chiral के चांसेस नहीं। इसमें हो सकते हैं
और इसी में ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट। व्हाई? Because you are adding, it's a nucleophilic addition reaction. Imagine CH3, CH2, C double bond OH. इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? We are adding HCN. तो देखो CN इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, AOH बन जाएगा और ये CN बन जाएगा। तो don't you think it's a chiral center? It is a chiral center. Make sense? इसमें तो सिंपल रिडक्शन होके अल्कोहल बनेगा सेकेंडरी, क्योंकि ये कीटोन है, और इसमें सिंपल HBr ऐड हो जाएगी, तो कोई कायरल की कोई चांसेस नहीं। मेक सेंस? यस। 38 रिपीट कर सकते हैं? व्हिच वन बेटे? 38 38 में व्हेनेवर यू हाइड्रोलाइज एनी एस्टर, तो ये जो फाकिया बेटे, ये जो साइड होती है ना कार्बन डबल बॉन्ड वाली, ये साइड, इसमें ये साइड बन रही है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड होती है, एंड द अदर साइड ऑक्सीजन वाली, ये अल्कोहल वाली साइड। सो पूछ रहा है कि विच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। एक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये वाला। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन, राइट। और वाई में कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला। कितने कार्बन? 5 कार्बन। मेक सेंस? यस, थैंक यू। एडिशन पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम दिस। देखो जो भी वो अजीब सा स्ट्रक्चर बता दे, आपको पता एडिशन तो यहीं पे होनी। तो द कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन्स, दिस कार्बन विल बी कनेक्टेड नेक्स्ट, एंड द कार्बन विद 1 हाइड्रोजन, और बाकी ये सारी चीज विल बी रिटन ऑन द टॉप। एंड यही रिपीट होगा बात। ये कहाँ पे रिपीट हो रही है? ऐसी चीज कहाँ पे है? ऐसी चीज ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं भी नहीं। आई मीन हाउ कैन द 3 कार्बन वुड बी इन मेन चेन, 3 कार्बन, भाई डबल बॉन्ड तो ये वाला पॉलीमर बनाएगा ना, तो सबसे आसान एमसीक्यू, ओ लेवल्स का एमसीक्यू। आई मीन सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, आगे ऊपर नीचे कर, राइट लेफ्ट कनेक्ट कर दो, बाकी ऊपर नीचे कर दो, दैट्स इट। ये देखो एग्जैक्ट यही चीज है, एग्जैक्ट। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली योर फेवरेट IR spectra. Compound X reacts with this to form compound. That means compound X is an oxidizing. Compound X is oxidized to form compound Y. Okay. तो ये आपको Y का स्पेक्ट्रम गिवन है। 1500 से पहले इग्नोर करेंगे। I have no doubt कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, this is carbonyl and this is OH. तो this has carboxylic acid. ये Y का है, don't forget ये Y का है। So identify the compound X. So मुझे बताएं किस चीज की मैं ऑक्सीडेशन करूं कि आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बने। कोई अल्कोहल ही होगा ना, कौन सा अल्कोहल होगा? इट शुड बी अ प्राइमरी अल्कोहल। मेक सेंस एवरीवन? तो which one is primary alcohol? Which one is primary alcohol? It is propan 1 all, because propan 2 all तो secondary होता है। नहीं यकीन आता तो बना के देख लो। सर ये प्राइमरी propan 2 क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल से ही बनता है ना बेटे, सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन बनेगा। क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है प्यारी बेटी। So X must oxidize to give you Y, and Y is a carboxylic acid. So X must be a primary alcohol. Make sense? Yes. Finally we completed a paper. See you inshallah tomorrow. कल हम जल्दी क्लास रखेंगे। I will confirm the time. कल आप लोग स्कूल तो नहीं जा रहे ना? ऑफ कोर्स ऑफ, ये घर पे बैठे हुए, तो आई विल कंफर्म द टाइम टुमारो। मैं सुबह 8-9 बजे तक आपको मैसेज कर दूंगा क्लास। टेक केयर एवरीवन। सर अल्लाह हाफिज। यस डॉक्टर फातिहा, सर आप अभी recording कर दे।